Hello students, I'm here with another video from the chapter of class 10th Science NCERT book, that is from the chapter Acids, Bases and Salts. Before starting today's video, I would like to tell you all that till now what all things we have discussed in this chapter. So children, we have discussed about the word acids, which has a property which is very similar because it is having a very sour, it is very sour in its taste. Okay? Then we discussed about the bases, which is having bitter in its taste, and then we'll be discussing about the salts in the later half of the chapter. Okay? Now we discussed about the acids, which is also being tested with the help of the acid base indicators, because they are going to tell us whether the given substance is acidic or basic in nature. And ये कैसे डिसाइड करते हैं, ये हम इंडिकेटर्स के बेसिस पर डिसाइड करते हैं. अब इंडिकेटर्स का क्या रोल है, इंडिकेटर्स का क्या यूज़ है. इंडिकेटर्स का सबसे बड़ा यूज़ यही है कि वो वी कैन रिकॉग्नाइज वेदर द गिवन सब्सटेंस इज हैविंग द एसिडिक प्रॉपर्टी और इट इज हैविंग द बेसिक प्रॉपर्टी. अब मेन थीम क्या है, मेन प्रिंसिपल क्या है इसके बिहाइंड, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि एसिडिक है कि बेसिक है चीज़ें. तो इससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये कलर चेंज एक होता है. कलर चेंज जब भी इंडिकेटर्स में होगा, विल बी एबल टू डिसाइड वेदर द सब्सटेंस इज शोइंग द एसिडिक प्रॉपर्टी और द बेसिक प्रॉपर्टी. ओके, then we discussed about the chemical properties of the substances, in which we saw about the two chemical properties of the acids, that is how they are going to behave with the metals are going to behave with acids. ठीक है, so we'll be discussing more about the chemical properties of acids. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स. ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में जो भी मेटल्स होते हैं वो वाटर के एसिड्स के साथ रिएक्ट करके मेटल सॉल्ट्स बनाते हैं एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड. ठीक है, हाइड्रोजन गैस अगर रिलीज हो रही है तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो हाइड्रोजन गैस है. उसके लिए हमने एक टेस्ट डिस्कस किया था. क्या नाम है उस टेस्ट का? उस टेस्ट का नाम है पॉप साउंड टेस्ट. ठीक है, तो जब भी हम बर्निंग स्पिंटर एक हाइड्रोजन गैस के पास लेकर के आते हैं, इट इज गोइंग टू गिव राइज टू popping sound. We can hear that sound and that is going to be a sure test of hydrogen gas. Similarly, we discussed more about the chemical properties, where we saw that acids and bases are going to react with the metal hydrogen carbonate, and metal carbonates are going to react with acids to form again metal salts would be obtained. साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर रिलीज होगी. ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड is going to be released and this could be decided by a test called the lime water is going to turn milky. So it turns lime water milky, exactly I wanted to say. ठीक है, तो test for carbon dioxide is it turns lime water milky. Test for hydrogen gas is it is going to give the pop sound. Okay, similarly we'll be discussing more properties of acids, that is how do acids and bases reacts with each other. So the next property is reaction of acids and bases together. अब एसिड्स और बेसिस अपने आप में आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, ये आपने देखा हुआ है एक्सपेरिमेंट्स के फॉर्म में भी. और जब भी एसिड्स और बेसिस साथ में रिएक्ट करते हैं, दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. तो इसका जनरल रिएक्शन हम पहले पढ़ लेते हैं. जनरल रिएक्शन में हम देखेंगे कि जब भी हम एसिड के साथ बेस के साथ एसिड मिलाते हैं, एसिड के साथ बेस मिलाते हैं, तो एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट एंड वाटर. ठीक है, इट गिव्स यू सॉल्ट एंड वाटर. अब एसिड के साथ सॉल्ट एंड वाटर जब भी बनेगा, इस रिएक्शन को हम एक रिएक्शन के नाम से जानते हैं, उसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन reaction.
Recently we have performed this test in the lab also, that you all have seen how to do this neutralization reaction where you are mixing one acid with base to form salt and water. Now here the salts are being formed. You can understand that we saw the first chemical property, there also metal salts were formed. If the acids are reacting with metal hydrogen carbonate, again the metal salts are formed. Similarly, whenever the acid and base both are reacting with each other, then also salt is being formed. तो salt हर एक कंडीशन में जब भी एसिड का रिएक्शन हो रहा है किसी भी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ, किसी के भी साथ अगर रिएक्शन हो रहा है तो उस समय सॉल्ट ज़रूर बनेगा. अब ये सॉल्ट जब भी बनेगा तो ये सॉल्ट का कुछ स्ट्रेंथ होगा. विल बी डिस्कसिंग दिस व्हेन आई विल बी टीचिंग यू salts. ठीक है. Meanwhile, I'll discuss one activity which is given as activity number 2.6 in this chapter, that is take 2 ml of dilute NaOH. क्या लेना है? NaOH. This is a base. This is sodium hydroxide. ठीक है. This is sodium hydroxide. Sodium hydroxide will take. Then in a test tube you have to add 2 drops of phenolphthalein solution. ठीक है. You will add phenolphthalein solution. Phenolphthalein solution क्या है अभी आपको यहाँ पता चलेगा. Phenolphthalein solution है एक इंडिकेटर. ठीक है. आपने पढ़ा हुआ एक सिंथेटिक इंडिकेटर है phenolphthalein, जिसको बेस के साथ जब भी हम मिक्स करेंगे it is not going to show any color. Add HCl solution in the above drop by drop. As soon as you are adding the solution of acid to it, that is HCl, this is hydrochloric acid, this is acid, this is hydrochloric acid. ठीक है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब भी आप रिएक्ट कराएंगे यहाँ पर इट फॉर्म्स अ न्यू प्रोडक्ट. उसके पहले कुछ रिएक्शंस आपको दिखाई पड़ेंगे कि जैसे आप ड्रॉप बाय ड्रॉप बेस के अंदर एसिड को डालेंगे तो जो फिनोप्थलीन का सॉल्यूशन है वो रिएक्ट करेगा. ओके. इट फॉर्म्स अ पिंक कलर सॉल्यूशन. यू ऐड डाइल्यूट HCl solution in the above solution drop by drop. In this, is there any color change for the given reaction mixture? Why did the color of the phenolphthalein change after the addition of an acid? Yes, it is going to be changed. पहले कलरलेस होता है, फिर वो एक के बाद एक ड्रॉप बाय ड्रॉप डालने से कलर पिंक कलर का बन जाता है. ठीक है. Why did the color of phenolphthalein changed after addition of an acid? Acid was going to be reacting with the phenolphthalein to give a pink color solution. Now add a few drops of NaOH to the given mixture again. अब जैसे ही आपने यहाँ पे given mixture में आपने NaOH में एसिड फिनोप्थलीन डाला, फिनोप्थलीन कलरलेस रहेगा, लेकिन उसके बाद जब भी रिएक्शन अब आप एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे पिंक कलर का हो जाएगा. और फिर उसमें अगर आप दोबारा से बेस को डाल देंगे तो फिर से वो नॉर्मली कलरलेस हो जाएगा. ओके. पिंक कलर डिसअपियर हो जाएगा. इट इज नॉट गोइंग टू रीअपियर. Okay, now what is happening in this activity actually? This is actually happening that acid का जो भी strength है वो base ने कम कर दिया, neutralize कर दिया, and it forms a product which is salt NaCl, sodium chloride plus water is released. ठीक है. Water is released. ये salt है, sodium salt, sodium chloride, and this forms water. सोडियम क्लोराइड वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करेगा और एक एक्टिव सॉल्यूशन बना रहेगा. ओके. सो दिस वाज अबाउट द एक्टिविटी व्हिच वी ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ बेस टू नलिफाई एन एसिड एंड वाइस वर्सा. द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इज एज आई हैव रिटन हियर आल्सो. सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद dilute HCl to form sodium salt, that is sodium chloride plus water. So this is also known by a reaction called neutralization reaction, which is said to be as it is nullifying the effect of the acids and bases. ठीक है. अब यहीं पर हमें strength of salt भी पता चल जाती है, अगर strong salt बना कि weak salt बना. Now the reaction between an acids and bases to give salt and water is also known as neutralization reaction. In general, neutralization reaction is written as base plus acid giving salt and water. ठीक है.
ये बहुत ही ईजी रिएक्शन है। इसके साथ आप कोई भी बेस यूज कर सकते हैं, एसिड्स यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो सॉल्ट बनेगा वो मेटल सॉल्ट के जैसा ही होगा। ओके, सो दिस वाज अबाउट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन चिल्ड्रन। नाउ आई विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, दैट इज इस न्यूट्रलाइजेशन की अपने आप में बहुत सारी एप्लीकेशंस भी हैं, जो हमने ऑलरेडी कुछ एप्लीकेशंस देखी हुई हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। क्या न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शंस हैं कि इवन अभी आगे भी हमें पढ़ना है। जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सॉल्ट कैसे फॉर्म होगा, सॉल्ट की कुछ अपनी अलग क्राइटेरियाज हैं, उसकी अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। विल बी रीडिंग अबाउट ऑल दोज प्रॉपर्टीज इन द next in the upcoming chapter. Okay, now we'll be discussing about the next chemical property, that is reaction of metallic oxide with acids. Reaction of metal oxides with acid. ठीक है, कैसे मेटल ऑक्साइड्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं। फॉर दिस यू विल टेक फ्यू अमाउंट ऑफ मेटल ऑक्साइड in a beaker, then add hydrochloric acid slowly while stirring. We'll take copper oxide plus hydrochloric acid. अब इसके साथ क्या मिलेगा, फिर से हमें इसके साथ हमें फिर से सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड के साथ जब भी रिएक्शन होगा, कॉपर ऑक्साइड को बीकर में लेना है, उसके साथ में आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिक्स करना है। यू हैव टू स्टर वेल एंड यू हैव टू ऑब्जर्व इट, यू हैव टू सी द कलर चेंज, व्हाट इज हैपनिंग टू द कॉपर ऑक्साइड। ओके, so you will notice that the color of the solution becomes blue green and copper oxide is getting dissolved. ठीक है, the blue green color of the solution is due to the formation of copper 2 chloride in the reaction. Okay, so it gives CuO plus HCl forms CuCl2 plus H2O. ठीक है, 2H 2CuO. ठीक है, ये बैलेंस भी हो गया। दिस इज गोइंग टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड विच फॉर्म्स कॉपर 2 क्लोराइड प्लस वाटर इज गोइंग टू बी फॉर्म। ये जो कॉपर क्लोराइड बना ये ग्रीन कलर का है। ठीक है, ये ब्लू ग्रीन कलर का है, जिसमें कि एक सॉल्यूशन बनता है कॉपर 2 क्लोराइड का। जो HCl आपने लिया, ये HCl येलो कलर का होता है, लाइट येलो, पेल कह सकते हैं। इसमें ये चेंजेस होंगे तो ये ग्रीन कलर में बदल जाएगा। ठीक है, अब कलर चेंज हो जाएगा, कॉपर 2 क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा, जिसके वजह से हमें ये सारे रिएक्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज नाउ राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द अबव। आई हैव ऑलरेडी रिटन दिस। Since the metallic oxide react with acid to form salt and water, it is very similar reaction with the base to form acids. Metal acids are said to be as the basic oxides. अब जो भी ये यहाँ पर ऑक्साइड बन रहा है, जो भी मेटल की ऑक्साइड्स होती हैं वो हमेशा बेसिक ऑक्साइड्स होती हैं। ओके, अब मेटालिक ऑक्साइड्स जब भी होंगी वो बेसिक ऑक्साइड्स ही होती हैं। सो दीज आर फॉर्म whenever it is going to be a metal oxide, it is always basic in its nature. It is basic oxide. Okay, so children, this was about the property of the metal. अब एसिड और मेटल जब भी मिक्स होगा, मेटालिक ऑक्साइड हमने देख लिया, मेटालिक ऑक्साइड के साथ जब भी रिएक्शन होगा तो ये सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। एसिड का जब भी रिएक्शन हो रहा था, एसिड का जब भी रिएक्शन था मेटल के साथ, तो मेटल सॉल्ट्स बन रहे थे। ठीक है, हाइड्रोजन गैस वाज रिलीज्ड, यहाँ पे वाटर फॉर्म हो जा रहा है। जो सॉल्ट बन रहा है वो एक कंबाइंड फॉर्म में बनेगा और वाटर रिलीज हो जा रहा है। यही फर्क है। अगर
ऑलरेडी कॉपर ऑक्साइड या मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन कभी भी किसी भी एसिड के साथ होगा तो। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट chemical reaction, chemical property of the metals, that is reaction of non-metallic oxides with bases. जब भी मेटल ऑक्साइड बनेगी, मेटल ऑक्साइड हमेशा एसिड्स के साथ ही रिएक्ट करेगा, बेस के साथ हमेशा नॉन मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट करेगा, क्योंकि जो मेटल ऑक्साइड है वो ऑलरेडी बेसिक नेचर का, तभी वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। बेस का बेस के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो बेसिक ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स आर ऑलवेज बेसिक इन नेचर, दैट इज व्हाई दे आर रिएक्टिंग विद एसिड्स। प्लीज रिमेंबर हियर we will be studying about the reaction of non-metallic oxides with bases. Next is reaction of non-metallic oxide non-metallic oxides with bases. Now please understand, this non-metallic oxide is acidic in its nature. That is why ये बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यानी यहाँ पर भी सेम रिएक्शन होगा और सेम प्रोडक्ट भी मिलेगा। क्या मिलेगा? लेट्स सी। You saw that the reaction between carbon dioxide and calcium hydroxide, that is lime water, that is forming the calcium hydroxide is a base, which is a base. It reacts with carbon dioxide to produce salt and water. The similar reaction would be given when the base and an acid is going to be reacting. We conclude that non-metallic oxides are acidic in its nature. तो यहाँ पे हमने क्या देखा था? Non-metallic oxides जो बन रही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर ठीक है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट, और we can say that the reaction of carbon dioxide with calcium hydroxide, ठीक है। आप ऐसे रिएक्शन कर लो, और इजी वाला पहले ही वाला, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट इज अ बेस, इट रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड विच इज अ नॉन मेटालिक ऑक्साइड, कार्बन है तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, ये बेस है। और जब भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होता है तो आपने देखा था क्या बन जाता है, एक CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट विच इज अ सॉल्ट, एंड व्हाट एल्स इज रिलीज्ड, वाटर इज रिलीज्ड। ओके, स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इज गोइंग टू बी रिलीज्ड। यहाँ पर ये जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, ये क्या चीज है, ये एसिडिक है, तभी ये बेस के साथ रिएक्ट कर रही है। यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए अच्छे से, क्योंकि जब भी रिएक्शन होता है किसी भी एसिड का, वो बेस के साथ ही रिएक्ट करेगा। एसिड का एसिड के साथ रिएक्शन होगा तब भी कुछ नहीं बनेगा, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा जिसे आप रिकॉग्नाइज कर सकें, ठीक है। अब with this you can understand well, I think the bases are going to react with non-metallic oxides and acids are always reacting with metal oxide to form salt and water is released. Please remember, metal का reaction अगर है acids and bases के साथ तो it forms salt and hydrogen gas is released. लेकिन अगर metal oxide का reaction और non-metallic oxide का reaction होता है तो salt और वाटर रिलीज होता है, ना कि हाइड्रोजन गैस, ठीक है। सो यही डिफरेंस है दोनों ही रिएक्शंस का। जब भी हम मेटल्स का रिएक्शन कराते हैं एसिड्स के साथ, इट रिलीजेस द वाटर, इट रिलीजेस हाइड्रोजन गैस। लेकिन जब हम नॉन मेटालिक ऑक्साइड या मेटालिक ऑक्साइड का रिएक्शन कराते हैं एसिड्स एंड बेसिस के साथ में, तब ये सिर्फ वाटर और साथ में सॉल्ट रिलीज करता है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एसिड्स एंड बेसिस with the metals, with the non-metals, with the oxides, with metallic oxide, non-metallic oxides, ठीक है। तो इतनी केमिकल प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी थी इस चैप्टर में फॉर एसिड्स एंड बेसिस। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक of this chapter,
that is what do all acids and all bases have in common. ठीक है, तो अब ये जो रिएक्शंस हो रहे हैं एसिड्स के बेसिस के साथ में, बेसिस के एसिड्स के साथ में, मेटल ऑक्साइड का एसिड के साथ में, हाइड्रोजन कार्बोनेट का मेटल कार्बोनेट का, कभी भी जो भी रिएक्शंस प्रेजेंट हो रहा है तो ये कैसे ये रिएक्ट कर रहे हैं, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन. What do all acids and bases have in common? ठीक है, क्या कुछ कॉमन चीजें प्रेजेंट हैं एसिड्स और बेसिस के अंदर, या क्यों ये रिएक्ट कर रहे हैं आपस में एसिड्स और बेसिस, इसमें ऐसा है क्या जिसकी वजह से रिएक्शन हो रहा है. सो वी सॉ दैट ऑल एसिड्स have similar chemical properties which leads to the similarity in the properties. We saw that acids generally releases, all acids generate hydrogen gas on reacting with metals. तो यहाँ पे जो reaction common है वो क्या है, metals reacting with acid to form hydrogen gas which is released. ठीक है, हाइड्रोजन गैस इज बीइंग फॉर्म विच इज बीइंग रिलीज्ड. मैंने इसीलिए अप एरो बना दिया, इसका मतलब है कि ये हाइड्रोजन गैस है. अब ये हाइड्रोजन गैस कहाँ से आई, जब यहाँ पर आपने देखा कि मेटल में कहीं पर भी हाइड्रोजन नहीं था, लेकिन एसिड में हाइड्रोजन प्रेजेंट है. आप अगर किसी भी एसिड को लेते हैं उस एसिड में हाइड्रोजन का अमाउंट प्रेजेंट होता है, वही कंबाइंड फॉर्म में है और वही उसके बाद रिएक्ट करके अलग होकर के हाइड्रोजन गैस का फॉर्म ले लेता है. सो हाइड्रोजन सीम्स टू बी अ कॉमन इन ऑल द एसिड्स. लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट वेदर ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन्स आर एसिडिक इन नेचर. ठीक है, टेक सम सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेट्रा. यू हैव टू फिक्स 2 nails on a cork and place the cork in 100 ml of बीकर. ठीक है, आपको 2 इलेक्ट्रोड्स के फॉर्म बनाने हैं. क्या करना होगा, एक बीकर लेना है, उस बीकर में एक कॉर्क रख देना है, उस कॉर्क के ऊपर 2 इलेक्ट्रोड्स आपने लगा दिए, स्क्रू लगा देंगे तो इट विल वर्क एज द इलेक्ट्रोड्स. ठीक है, अब इन इलेक्ट्रोड्स को आपको ज्वाइन करना है. इन इलेक्ट्रोड्स को इन वायर्स को आपको बाहर निकाल करके ज्वाइन कराना है एक चीजों से. कुछ क्या है वो, यू कैन चेंज दिस, यू कैन पुट 1 bulb, ओके, स्मॉल बल्ब. एक स्विच लगा सकते हैं यहीं पर, एंड इट इज बीइंग कंबाइंड विद अ बैटरी. ठीक है, अब वी आर गोइंग टू पोर डिफरेंट सॉल्यूशंस. कौन कौन से सॉल्यूशन हमें लिए, अल्कोहल, ग्लूकोज. ठीक है, अल्कोहल लिया, ग्लूकोज लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, सल्फ्यूरिक एसिड लिया. फाइन, एंड वी हैव टू प्रूव दैट ऑल द हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर गोइंग टू रिलीज हाइड्रोजन गैस. ठीक है, अब इसमें और क्या क्या चाहिए हमें, you have to connect the 2 nails of the 2 terminal with a battery and a small bulb with a switch. Now pour some dilute hydrochloric acid in the beaker and switch on the current. अब यहाँ पर आपको dilute hydrochloric acid यूज करना है. dilute hydrochloric acid हम पहले रिलीज करेंगे and then switch on. आप इसमें pour कर दीजिए and switch on. What are you going to observe? Repeat the activity with dilute sulfuric acid. ये भी dilute फॉर्म में है. ठीक है, इसके बाद you have to repeat the activity separately with glucose and alcohol solution. What happens in all the cases? The bulb will start glowing in each cases of acids, but it is not glowing in the case of glucose and in alcohol. ठीक है, इन दोनों में बल्ब नहीं ग्लो करेगा, बट यहाँ पे ग्लो करेगा और यहाँ पे ग्लो करेगा, दोनों जगह में ग्लो करेगा जहाँ पर एसिड्स रखे थे.
We observe that alcohol and glucose are not conducting electricity, which glowing of the bulb indicates that there is a flow of electric current through the solution. Electric current is carried out through the solution by ions. अब बिल्कुल जनरल कॉन्सेप्ट है ये, जब भी रिएक्शन कर रहा है, जब भी रिएक्शन हो रहा है. So we'll see this that here dilute acid के केस में बल्ब ग्लो करेगा, bulb will glow, and this is not going to glow. ठीक है. लेकिन लास्ट केस में, इन दोनों केसेस में, अल्कोहल और ग्लूकोज में, दोनों ही केसेस में यहां पर बल्ब ग्लो नहीं किया. Here also and here also. अब रीजन क्या है? आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है कि रीजन इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, इट इज द फ्लो ऑफ आयंस. अब फॉर द टाइम बीइंग यू कैन डिसाइड दैट डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज हैविंग द फ्री आयंस, whereas जो अल्कोहल और ग्लूकोज है इनमें हमेशा ही एक कंबाइंड फॉर्म होता है, एक कंबाइंड ions present है. मतलब ions are free, they are not free in the alcohol and the glucose solution. इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि all hydrogen containing compounds are not showing the acidic properties, they are not showing the any kind of the acidic behavior. I mean their free ions are not present. Fine. So glowing of the bulb indicates that there is a flow of electricity in these two solutions. Whereas in alcohol and glucose the electricity is not being flowing, that is why bulb is not glowing. And it also tells that in these conditions कोई भी free ions नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है. इन दोनों में free ions present होते हैं. अब इन दोनों में common क्या चीज़ है? ये दोनों acids थे, बाकी दोनों solution acid नहीं होते हैं. Glucose solutions are not acidic. So since they have cations present in the acids, they have cations. Okay, they have cations present in the acids which contains H plus ions. Cations in the form of H plus ions. ठीक है, positively charged particles होते हैं cations. ये cations जब भी flow कर रहे हैं तब इसमें electricity conduct हो रही है. It suggests that all the acids they produce hydrogen ions which is responsible for their acidic properties. So ये जो cations है they are responsible for the acidic property. Okay, if they don't have cations they are not going to be known as the acidic solution. ठीक है, तब फिर कोई acidic solution नहीं होगा. ये एक नॉर्मल सा एक पोलर सॉल्यूशन होगा या फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन कह सकते हैं आप इसको. ठीक है, तो एसिड्स जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, H2SO4, इन दोनों ही कंडीशन में जब भी बल्ब ग्लो किया, ये ग्लो इसलिए किया क्योंकि इसमें फ्री आयंस थे. H प्लस आयंस एसिड की एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है और एसिडिटी इसी वजह से किसी भी एसिड में प्रेजेंट है. ठीक है, so you have to repeat the activities with the alkalis such as sodium hydroxide and you can also conclude the result of this activity. ठीक है, आप एसिड्स में भी देखेंगे, बेसिस में भी देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, बट जब भी एसिड्स में भी फ्लो करेगी, बेसिस में भी, क्योंकि बेसिस में भी H plus ions present होते हैं in the form of the OH minus ions. I mean their cations are, these are having the anions present, OH minus ions are present. अब ये OH minus ions जो भी हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए हेल्प करते हैं. तो cations और anions की वजह से ही कोई भी यहाँ पर रिएक्शंस हो रहे हैं. These are the things which are common in both acids and bases. ठीक है, so children, this was about the explanation regarding what all acids and bases have in common, but we can conclude this also that all the H containing ions, all the hydrogen containing compounds are
they are not always acidic. They could not always be base. They could be certain other types of the compounds. But what is common in both of them? They have H plus ions. Okay. So this activity suggested that in each and every acids, H plus ions or the cations are present, which is responsible for the acidity. Okay, so we saw about the chemical properties of the acids and bases, in which we saw the reactions of acids with metals, reaction of acids with bases, reaction of metal oxides with the acids and reaction of non-metallic oxide with bases. ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर आज के वीडियो में हमने देखी. Up, I will be meeting you all in the next video. I will be telling you about some more things which is related with acids and bases. So that's all for today's video. I will be meeting you all in the next class.